So now we study Laplace equation on the exterior of a circle. So we have Dirichlet problem. Uxx plus uyy equals to 0. Outside a circle, and boundary u equals to h theta. So what is boundary now? This is the boundary. Okay, and you are taking problem outside, exterior, and since we don't have bounded domain, so it is also given that u is bounded as x square plus y square goes to infinity. Otherwise you won't have a bounded solution. So this is given. So we need to solve this problem as we did many times. So firstly you will write uh, the problem in polar coordinate. Okay, so you will write it in polar coordinates. So r square ur plus rur. In previous problem I have skipped that portion. Okay, but you start with writing this. First write it in polar coordinate. So r will vary from a to infinity outside the circle, and theta is usual 0 to 2 pi. Then u equals to h theta. Boundary condition is already in polar coordinate. So from periodicity you can also write ur0 equals to ur 2 pi. And you can also write u theta r0 and u is bounded as r goes to infinity. So there are some inherent, or you can say hidden conditions, though, that you need to specify. So we will try to find solution. थर्ड कंडीशन मानते हो ना, जीरो सर्कल पे मूव कर रहे हो ना आप, जीरो मूव मूव करके आओगे तो 2 पाई के बाद फिर सेम पोजीशन पे आ जाओगे. ठीक है, 2 पाई के बाद हमने पहले भी कंडीशन लिखा था, अगर आपको ध्यान हो, थीटा पीछे लिखा था ना हमने, जो भी नोटेशन थे आपके. आई थिंक वी हैव रिटन जी थीटा equals to g theta plus 2 pi. Okay, so after rotation you will be at the same position. So now you start with separated solution.
we find separated solution. U equals to what notation we used earlier? F and G. Okay, so don't be consistent with notation. In books and in my notes, it is written that this one. So both are the same thing. Okay. So R वाले term separate कर लो और theta वाले के separate कर लो. Then you have R square R double dash plus जो R वाली term होगी plus to lambda constant. So firstly you solve the eigenvalue problem. Second, इसी को solve कर लो, but second वाला simple है, उसको solve कर लो. With condition after movement you will be at same position और वेरिएबल भी सेम होगा, डेरिवेटिव भी सेम होगा उसका. चेंज. So this is the eigenvalue. Eigenvalues are lambda n equals to n square and corresponding eigenfunctions are an cos n theta plus bn sin n theta. N is 0, 1, 2. So you need to solve two cases. एक जीरो के लिए मिलेगा और बाकी नॉन जीरो के लिए. And then you solve a second problem. That is known as R problem, जिसको हमने F लिखा था. आपने F लिखना है, F लिख लो, आपकी मर्जी है. So solve this problem for two value when n equals to 0. You have तो जो इसका solution मिलेगा 0 के लिए, that will be some constant C0 plus D0 log R. ठीक है. और बाकी वैल्यू के लिए this is Euler-Cauchy equation, so you will have solution in that form. So for n greater than or equals to 1, you have solutions C0 D0 लिख लो, इनको लिख लो Cn. इस फॉर्म में होंगे ना r पावर n और r पावर माइनस n. आप किसी को पहले लिख सकते हो in any order. You can write r power minus n and r power n. It's your choice. Okay. अब जो कंडीशन है since u is bounded as r goes to infinity. तो यहाँ तक तो हमने लिखा ही था, मैंने रिपीट किया सारा. ठीक है, that you did earlier.
You will write in every cases. So then you discard either r power n, r power minus n. तो पहले हमने discard किया था when you had origin, you discarded this term, okay, r power minus n. origin पे define नहीं था ना, but यहाँ पे अब उल्टा है. So when r goes to infinity, क्योंकि region unbounded है ना, you are going outside circle. So when r goes to infinity, r power n goes to infinity. This one. So this is unbounded. But वो क्या कहता है? When r goes to infinity, solution is bounded. So this means you have to discard this term, positive वाले को. Okay. So bounded at r goes to infinity. So we take only negative solution, r power minus. So now apply superposition principle. Multiply both and take sum. So 0 to infinity आएगा r multiply by theta. That r is same for f, theta is same for g that we used earlier. Okay, so but I want to say that you should not be consistent with notations. है ना, एग्जाम में कुछ भी आ जाए, जैसे आपने बीएससी में पढ़ते थे डी से आप पक्का है डी डी डैश, है ना, अगर डी डी डैश नहीं दिखा देन यू विल गेट कंफ्यूज. Okay, so don't be consistent with notation, just understand their meaning. तो कांस्टेंट वाली टर्म आएगी अलग से. कांस्टेंट वाली टर्म जो फर्स्ट से आएगा, यहाँ से आएगा, कॉस कॉस 0 1 बन जाएगा. और कांस्टेंट टर्म भी आपने ध्यान से लिखना. देखो पहली बात तो क्या करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे r पावर n से, उससे n को 0 फिट करोगे, ये तो 1 बन जाना है, cos 0 1 बन जाना है, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट ही आएगा. ठीक है, एंड जब मल्टीप्लाई करोगे corresponding to n equal to 0, you will have a constant. उस कांस्टेंट को मैं लिख रहा हूँ a0/2. ठीक है, और बाकी जो सीरीज बचेगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसमें है जो हमारा cn r पावर माइनस n एंड an cos n थीटा एंड bn sin n थीटा. और इनको भी आप कंबाइन कर सकते हो, दैट वी डिड मैनी टाइम्स. cn को an से कंबाइन कर दो. ठीक है, cn उसको मैं स्मॉल an लिख रहा हूँ. ठीक है, cn और an को, और cn bn को कंबाइन करके आई एम राइटिंग स्मॉल bn, और यू कैन राइट कैपिटल an और bn. These are just constant. Okay, so try to write the problem with minimum number of constants, and multiplication of two constant is again a constant. Okay, तो इसको स्मॉल लिखा है तो इसको भी हम स्मॉल ही लिख देते हैं, इसको भी a0/2. a0/2. So now you set r equals to a, boundary condition to find these constants. So when r equals to a, you have solution h theta. So a0/2. Now you will get Fourier series. an cos n theta plus bn sin n theta, और सॉरी r इक्वल्स टू a फिट करना, तो a पावर माइनस n. अच्छा, ये a आ गया, ये भी. ओके, सो टू अवॉइड कंफ्यूजन जस्ट राइट इट. सो दीज टू a's आर नॉट सेम, इसको कैपिटल ही रहने दो आप, an. ठीक है, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन just write it a0/2, a0/2.
0/2। तो आपको ये ना लगे ना कि ये ए और ये दो ए सेम है, दे आर डिफरेंट। ठीक है, ये ए तो रेडियस वाला ए है ना, वो ए कांस्टेंट था। तो सो दिस इज फूरियर सीरीज। सो फाइनल फूरियर कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट को कॉस के साथ क्या है, ए पावर माइनस एन ए एन। तो ये फूरियर कोसाइन कॉफिशिएंट है, और दूसरा बी एन ए पावर माइनस एन, दैट इज फूरियर साइन कॉफिशिएंट। एंड यू कैन compute these coefficient from the Fourier series। ये Fourier series बन गए h का। okay, so this is Fourier series of h। so therefore where जो an आएगा, an इधर डिवाइड करोगे a पावर माइनस n तो ये ऊपर चला जाएगा, चाहे नीचे लिख लो उसको, 0 to 2 pi cos n theta multiply by h theta d theta। ठीक है, n is running from 0 1 2। और दूसरा कोएफिशिएंट bn जो है 0 to 2 pi, ये साइन कोएफिशिएंट है, h थीटा, और साइन 0 0 होता है तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1। सो फाइनली you have solution that is given by this equation you can write। so this is a solution and these are the coefficients, so no need to write it again। okay, so solution is u given by this formula, and where an and bn these are unknowns, और an ये a0 उसी में कंबाइन है, so you can start from 0। okay, any doubt? So this finally completes solution for various cases। और इस सीरीज को आप एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो, ध्यान है हमने पीछे किया था, यू कैन कंबाइन ए एन बी एन एंड यू। कौन सा फार्मूला था वो, भूल जाते हो कौन सा फार्मूला था जो तीनों को कंबाइन करेगा, फॉरगेट Poisson फार्मूला। you can combine this series, you can write everything in Poisson फार्मूला। लिखा था ना हमने, a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 0 to 2 पाई इंटीग्रल h डिवाइड बाई, वो वाला फार्मूला यूज कर सकते हो पोलर कोऑर्डिनेट्स में। so okay, so that's it। so now we सर can, एक बार प्लीज वेटेज बता देते। हाँ जी, वेटेज सर कौन से चैप्टर की क्या आएगी ईएसटीज में? सारी वेटेज हैं सबकी। so now you can take some problems, some exercises। for example, solve uxx plus uyy equals to 1 in r less than a,
with uxy vanishing on r equals to a. So r less than a means that you are solving, रीजन क्या बनेगा ये r less than a? डिस्क बनेगी ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर है, ठीक है, और u 0 है on this boundary. So you are solving this problem on a disk. और या कई बार इस प्रॉब्लम कैसे भी पूछ लेते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन दैट इज डिपेंड ओनली ऑन आर, मतलब थीटा रोटेशन से वो इनवेरिएंट रहेगा. सो फाइंड सॉल्यूशन ओनली डिपेंडिंग ऑन आर. तो पहला स्टेप है आपने पोलर फॉर्म लिखना है इक्वेशन का. uxx plus uyy equals to urr plus 1 by rur plus 1 by r square. ये लिखा था हमने, या कुछ यहाँ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है. आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर यू आर आर प्लस आर यू आर प्लस यू थीटा थीटा बन जाएगा, ठीक है. सो वी लुक सॉल्यूशन only depending on theta, only depending on r, sorry, that is u r theta equals to u r only. हमने आर्टिकल भी किया था ना. सो यू कैन इग्नोर द टर्म कंटेनिंग थीटा. सो यू आर आर प्लस 1 बाई आर यू आर इक्वल्स टू, प्रॉब्लम में 1 है, इक्वल्स टू 1, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू 1. तो इसको आप लिख सकते हो आर यू आर ये लिख सकते हो ना, आर से मल्टीप्लाई करने पे आर यू आर आर प्लस यू आर इक्वल्स टू आर, और लेफ्ट हैंड साइड को एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना सकते हो. एंड ऑन इंटीग्रेटिंग you got u r equals to r square by 2 plus some constant c1, ठीक है. और यहाँ u r को लिख लो, r से डिवाइड कर दो, u r अगेन इंटीग्रेट, एक बार और इंटीग्रल कर दो. सो r स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 log r प्लस c2. आर स्क्वायर बाई 2 पहले था, से पहले था, ये आर बाई 2 बनेगा ना, आर स्क्वायर बाई 4. तो अब कंडीशन क्या है, u वैनिशिंग ऑन r इक्वल्स टू 0. बाउंड्री कंडीशन क्या है, when r equals to a u is 0. और दूसरी पॉसिबिलिटी तो है ही, अब ये सॉल्यूशन वेल डिफाइंड भी तो होना चाहिए ना. तो बताओ कौन सी टर्म को नेग्लेक्ट करें यहाँ से. when r goes to 0 everything will be defined.
डिस्कार्ड करते थे ना हम टर्म, आप डिस्क के अंदर सॉल्व कर रहे हो, ओरिजिन पे भी जाओगे, तो कौन सी टर्म को डिस्कार्ड करें? लॉग वाले सर। हाँ शाबाश, लॉग वाले। ओके, सो बाउंड्री कंडीशन है आल्सो, यहाँ इन अदर वर्ड्स में क्या कर सकते हो, C1 इक्वल्स टू 0 ले लो, है ना। सो वी डिस्कार्ड log r since when r goes to 0 it is not defined। तो अब यू ए बाउंड्री वाली यूज कर लो, दूसरे वाली कंडीशन, यस, तो C2 मिल जाएगा आपको, C1 तो 0 है ही ऑलरेडी। अब यू ए 0 है तो C2 कितना आ गया, a² by 4, therefore यू आर equals to r² by 4 minus a² by 4। so this is my solution। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम पूछते हैं when you need to find solution that only depend on r। ठीक है, फिर आर थीटा वाले दोनों पे डिपेंडेंसी है, वो हमने एग्जांपल किए हैं कई सारे। और एक शॉर्ट ट्रिक भी है, स्ट्राउस की बुक में दिया, दैट वैसे तो हमें अवॉइड करना चाहिए, बट व्हेन यू हैव सम शॉर्ट आंसर टाइप यू कैन यूज दैट क्विज। तो ये ट्रिक कहता है कि बाउंड्री कंडीशन अगर आपकी पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, पॉलिनोमियल समझ तो क्या होते हैं, एक्स की पावर्स हो ना, when you have boundary condition in term of polynomial, so this says that solve uxx plus uyy equals to 0 on rectangle इस रीजन पे with boundary conditions। पहली बाउंड्री कंडीशन है ux इक्वल्स टू -a ऑन x इक्वल्स टू 0। दूसरी है ux इक्वल्स टू 0 ऑन x इक्वल्स टू a, और uy इक्वल्स टू b ऑन y इक्वल्स टू 0। चारों साइड पे दे रखा है, uy इक्वल्स टू 0 ऑन y इक्वल्स टू b। सॉरी, ux इक्वल्स टू x माइनस a और y माइनस b, ये कंडीशन थी। सॉरी, एक मिनट चेक, ये नहीं था, एक मिनट, नहीं पहले ठीक लिखा था। ux equals to, let me verify from the book। ux equals to -a, okay sorry, -a and plus b, ओके पहले ठीक लिखा था, यही है ux equals to -a। ओके, बाउंड्री कंडीशन है, सॉरी पॉलिनोमियल तो नहीं है। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम हो जिसमें सारे डेरिवेटिव डिफाइन हो बाउंड्री पे, सारे डेरिवेटिव डेरिवेटिव टर्म में है बाउंड्री कंडीशन, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हो कि जैसे ux, इन दोनों को कंबाइन करना है मैंने, इनको, ये कहता है कि हाँ, इस केस में क्या होगा, पॉलिनोमियल सॉल्यूशन अगर हो तो आप निकाल सकते हो पॉलिनोमियल ओनली। तो हमने देखा भी था लैपलेस इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉलिनोमियल फॉर्म में होते हैं, मैंने डिस्कस किया था पिछली बार, है ना, x प्लस आयोटा y पावर n।
रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हो आप। और इनफैक्ट इसी से जेड पावर एन से ही एक्सपोनेंशियल साइन कॉस भी आते हैं। ई पावर आयोटा थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। और सो फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस वी कैन गैस। सो या तो आप प्रॉब्लम को यूजुअल वे में सॉल्व करो जैसे हम करते थे पहले, ठीक है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाओ, वो तो करेगा ही वर्क आपका, उससे प्रोसीड करो। या बाउंड्री कंडीशन से यू कैन गैस कि अगर मैं यू एक्स ये लूँ, x minus a, when x equals to 0 this is minus a, when x equals to a this is 0, बन जाएगा ना ऐसे। और इन दोनों को कंबाइन कैसे करोगे? क्या सोचें? यू वाई b इक्वल्स टू minus y प्लस बी आना चाहिए पहली बात तो ना, माइनस बी माइनस वाई ले लो। when y equals to 0 this is b, when y equals to b, b minus b this is 0। तो यू एक्स यू वाई पता लग गए, इंटीग्रल कर लो आपको मिल गया यू। तो इसका इंटीग्रल क्या देगा फर्स्ट का? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स प्लस सम कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रल क्या देगा? माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। तो यानी कहने का मीनिंग है सॉल्यूशन के अंदर ये फैक्टर होंगे। अब कंबाइन कैसे करोगे इनको? एक की सॉल्यूशन के अंदर ये फैक्टर होंगे, दोनों को कंबाइन कर देना आपने। कंबाइन कैसे करोगे? पहले वाला लिख लो और दूसरे वाला इकट्ठा लिख दो इनको बस, और C1 प्लस C2 को C नया कांस्टेंट लिख दो। ठीक है, तो शॉर्ट में आप ये भी कर सकते हो। आसान है। इफ यू अप्लाई सेपरेशन यू नीड टू डू मैनी कैलकुलेशंस। तो इसमें हिंट क्या है? अगर बाउंड्री कंडीशन को आप कंबाइन कर पाओ पॉलिनोमियल में देन यू कैन डू ओनली। एंड आल्सो बाकी तो हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम भी सॉल्व इन जो डिफरेंट टाइप का है वो तो मैंने मैक्सिमम सॉल्व किया ही है। एक प्रॉब्लम और था इसमें, सॉल्व solve Laplacian of u equals to 0 on disk with boundary conditions, at u equals to 1 plus 3 sin theta on r equals to a। कैसे करेंगे? inside of disk
देखिए इसमें जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था ना पिछली बार, एक डिस्क वाला हम कर ही रहे थे पीछे, सब में हम ये कर रहे थे। तो चाहे तो आप इनको आप याद रखिए इनको, ठीक है, सॉल्यूशंस को। थीटा क्या मिलेगा, मतलब सेपरेट करोगे जब, एक ये मिलेगा और साइन और कॉस में होगा ए एन, और दूसरी जो प्रॉब्लम आर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में। तो बार बार कोई इनको शो करने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट अब इसमें कौन सा डिस्कार्ड करना है ये हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कर लेंगे, बट यू हैव टू नो दिस टू फार्मूला कि आर कितना मिलेगा, एक आर ये मिलेगा कांस्टेंट के लिए, सॉरी जीरो के लिए ये मिलेगा, आर दो हैं, ये दोनों अपने याद रखने हैं, और दूसरा जो थीटा वाला है उसमें ए एन कॉस और बी एन साइन मिलेगा। सो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यू कैन यूज डायरेक्टली, ओके। So we have separated solution. पहला कांस्टेंट a0/2 कंबाइन करते हो n1 टू इन्फिनिटी। अब इसमें r के r पावर n होगा, r पावर माइनस n होगा। डिस्क के इनसाइड सॉल्व कर रहे हो तो इसको आप डिस्कार्ड कर दो। तो क्या सोल्यूशन लूंगा मैं, आर एन ए एन कॉस एन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा, ठीक है, ये आएगा सोल्यूशन। वेयर ए एन की जो वैल्यू होगी 1/पाई, यहाँ से आप जब बाउंड्री कंडीशन यूज करोगे तो बाउंड्री कंडीशन क्या देगी, ए एन ये देगा, ठीक है। तो लेफ्ट में एक्चुअली ये आएगा ए एन इक्वल्स टू 1/पाई 0 to 2 पाई। तो ए एन को राइट में ले जाओ, सो 1/पाई ए एन 0 to 2 पाई एच थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा, और बी एन की वैल्यू 1/पाई एन, और कॉस वाले में एन 0 से होगा, 0 1 2 3, और साइन वाले में 1 2 3 से शुरू होगा, ठीक है। अब आपके पास जो u है, यू ए थीटा ये है जो बाउंड्री कंडीशन है, ये आर को ए फिट करोगे तो आपको ये मिला है 1+3 साइन थीटा। तो ये ऑलरेडी फूरियर सीरीज है, साइन कॉस जब दे रखे हैं तो फूरियर सीरीज ही है। इसको देख के आप सीधा भी फूरियर कोएफिशिएंट लिख सकते हो। मतलब या तो आप ये करो कि ये एच थीटा है आपका, एच की वैल्यू यहाँ 1+3 साइन थीटा फिट करो, इंटीग्रल करो, यहाँ आप इसको सीधा देख के लिख सकते हो। तो बताइए क्या होगा, ए एन्स क्या होंगे, बी एन्स क्या होंगे। वन प्लस एन इक्वल्स टू 0, जो कांस्टेंट टर्म पहला आएगा दैट इज 1। ये पूरे साइन सीरीज है, 3 साइन थीटा साइन सीरीज है, पहला कांस्टेंट तो 1 है, बाकी कॉस तो इसमें है नहीं, तो बाकी एन क्या होंगे, ऑल विल बी 0 1 ऑनवर्ड्स। और बी एन भी क्या होंगे, 3 साइन थीटा साइन एन थीटा। तो B1 मिल गया आपको, B1 आपके पास इसने 3 दे रखा है, बाकी तो सारे 0 हैं। मानते हो इसको बात को।
या आप इंटीग्रल कर लो, वैल्यू फिट करके इनको इंटीग्रल कर लो। ऑलरेडी पूरे कोसाइन सीरीज दे रखा है, तो यानी कि इनफैक्ट अगर मैं इसको इधर ही लिखता हूँ, इनको इधर नहीं लिखते, ए एन को आप इधर ही लिखते हो। फूरियर कोएफिशिएंट ये है और ये, जब साइन कॉस दे रखा हो तो फूरियर सीरीज है ना, तो वन किससे आएगा? तो साइन सीरीज से आएगा वन एन इक्वल्स टू जीरो, तो यानी कि कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है आपकी दे ही रखी है उसने वन, तो कांस्टेंट टर्म हमने क्या अज्यूम किया था, a0/2 विच इज वन। बाकी ए एन कॉस तो है ही नहीं उसमें, बाकी ए एन क्या होंगे, जीरो, एन इक्वल्स टू 1 2 3 एटसेट्रा। और 3 साइन थीटा दे रखा है उसने, 3 साइन थीटा, 3 साइन के साथ आएगा 3, और इधर क्या आएगा, एन साइन थीटा 1 के लिए है, तो ए यानी कि ए b1 दे दिया उसने, ए भी आएगा ना एन इक्वल्स टू 1, तो b1 आ गया आपका 3/a, और बाकी bn सारे जीरो होंगे एंड नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए। नहीं मानते हो? तो सॉल्यूशन क्या आएगा, यू आर थीटा कांस्टेंट टर्म आएगी, और साइन वाले में साइन, सॉरी साइन थीटा नहीं है, ये साइन एन थीटा था ये, और एन इक्वल्स टू 1 वाली टर्म आएगी, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट आएगा आर 3/a, 3r/a साइन थीटा। सो दिस इज माय सॉल्यूशन। This is important way that you can write solution if you have already Fourier series. करते हो एग्री? और in previous calculation I hope everyone has done, बीच में हमने कई बार शॉर्ट लिखा है, तो of course you need to fill in the blanks. Any query? No? Okay, so I'll stop now.